Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, we have reached the halfway of our teachings on Holy Gita. Today is our ninth chapter, ninth Adhyay. In this, the teaching is value your blessings. In this, Lord Krishna tells us, believe in God and trust the God and His blessings. He says, you should think there is someone who is supporting you. You dedicate everything to Him, you will be reaching your destination. Now here he does not mean God means God. Here he means you should trust someone in your life. He may be your guru, he may be your father, he may be your relative, he may be God, he may be Hindu God, or any other God, maybe Muslim God, maybe Christian God, maybe Sikhism God. Means you have to trust someone. Some faiths they ask about gurus, some faith they tell about God, some faith they tell about something else. The teaching of this lesson is value your blessings. That means if there is someone who can bless you, you should value him. Because blessings has lot of power. Blessings has lot of charisma. Blessings can take you to greater heights. So along with your karmas, you need blessings of someone. So our task is to do some act, to do some good act. So do the act that is harmless. Do the act which is in some direction. Do the act that helps humanity. Do the act that takes us to greater heights. Do the act that is directed towards fulfillment of my desire and my dreams. So doing something on daily basis, doing something on regular basis, doing something in right direction is the most essential part of our life. So the teachings of Gita is remain working all the time. Time is priceless. Time is essence. It will never come back. Never miss an opportunity. Utilize the time given to you to the optimum level. Value the time. Time will value you. Some people may lose the time, waste their time in gossip and other things. Some people, they read the important material. Some people, they do the effort in right direction. So the important thing is how we utilize the time. Because the action gets reaction. This is the law of science. So if we are doing something, we are bound to get something in return. So what is in our hands? Our karma. We have to do an act. We have to do an act which is useful. We have to do an act in a direction which give me fulfillment of my life. So this is the greatest teaching in Gita, where he says, believe in God, believe in someone, and believe in his blessings. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. देखते देखते हम गीता के 9वें अध्याय पे पहुंच गए और हमारी आधी जर्नी इस महान ग्रंथ की आज पूरी हो जाएगी. कैसे आसान शब्दों में हम समझते जा रहे हैं कि जीवन मूल्य क्या है, हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं. इस अध्याय का सार है कि जो आपके आशीर्वाद हैं उनका सम्मान करें. वैल्यू योर ब्लेसिंग्स. इसमें ईश्वर ने, भगवान कृष्ण ने हमें ये बताया है कि जो कुछ भी है मुझ पर अर्पित कर दो,
मुझ पर विश्वास करो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बताया कि हर व्यक्ति को अपना कोई ना कोई ऐसा साथी बनाना चाहिए जिस पे वो विश्वास करे। वो उसका गुरु भी हो सकता है, वो उसका पिता भी हो सकता है, वो उसकी माता भी हो सकता है, वो उसके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। और फिर अपने कर्म उनकी ब्लेसिंग के अनुसार करते चले जाना चाहिए, उन पे विश्वास करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए और उनका शुभ आशीर्वाद लेना चाहिए। तो यदि आपके कर्म और आपके साथ आशीर्वाद आपके भगवान का, आपके ऐसे व्यक्ति का जो आपका वेल विशर है, आपके साथ है, कामयाबी आपको मिल के रहेगी। हमें आशीर्वाद की वैल्यू करनी चाहिए। कई लोग आशीर्वाद को नहीं समझ पाते हैं। इस पूरी जिंदगी में आशीर्वाद का बड़ा महत्व है। तो हमें क्या करना है? हमें अच्छे कर्म करने हैं, ऐसे कर्म करने हैं जो हमें फल दें, ऐसी डायरेक्शन में चलना है जो हमें जीवन में अपने जो सपने हैं उनको पूरा करने में कामयाब कर सकें। इसी प्रकार हमें वो कार्य करने हैं जो दूसरों को दुख नहीं दे। हमें वो कार्य करने हैं जिससे हमें आत्म शांति मिले। हमें वो कार्य करने हैं जो हमारे लक्ष्य हैं उनकी प्रतिपूर्ति की तरफ डायरेक्टेड हो, क्योंकि सही दिशा में किए गए कार्य ही हमें लक्ष्य पे पहुंचा सकते हैं। लक्ष्यविहीन व्यक्ति कहीं भी नहीं पहुंच सकता है। जीवन में कई बार भटकाव आता है, हमें नजर नहीं आता है हमें क्या करना है, और भटकाव की स्थिति में हम रहते हैं। यहाँ हमें कौन मदद करता है? यहाँ मदद करता है हमारा ईश्वर। यहाँ हम ईश्वर का अर्थ हमारे भगवान से भी हो सकता है, यहाँ ईश्वर का अर्थ हमारे गुरु से भी हो सकता है, यहाँ ईश्वर का अर्थ हमारे साथी से भी हो सकता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग भगवान बताए गए हैं, सब एक ही हैं। धर्म अलग हो सकते हैं, सबका लक्ष्य एक ही है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म के अंदर या तो प्रभु की भक्ति या किसी गुरु की भक्ति या किसी प्रभु के बताए मार्ग पर चलना या किसी गुरु के बताए मार्ग पर चलने का ही हमें बताया गया है। और सब के सब ग्रंथ, हर धर्म के जो हमारे ग्रंथ हैं, हमें एक ही बात बताते हैं, हमारे हाथ में है कर्म, फल ईश्वर के हाथ में है। तो जो लोग सतत प्रयास करते रहते हैं, कर्मशील रहते हैं, कर्मों की उपासना करते हैं, कर्म करते चले जाते हैं और समय को व्यर्थ नहीं करते हैं, समय के मूल्य को समझते हैं, समय अनुसार कार्य करते हैं, वो जीवन में अवश्य ही कामयाब होते हैं। समय को समझना, समय के अनुसार अपने को ढालना, समय के अनुसार कार्य करते रहना, यही जीत का मूल मंत्र है। गॉड ब्लेस यू ऑल।